السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار ویڈیو لے کے آؤں۔ یہ بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ایک کہانی ہے جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرتے ہوئے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تھا کہ جی عذاب ہو رہا ہے مردوں پہ، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہریالی یعنی کہ گرین ٹہنی رکھی، ٹھیک ہے، کھجور کے پتے رکھے۔ تو نعوذ باللہ اب اس کی برابری کرتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس لیول تک لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے پر سے عذاب ٹال دیا۔ اب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ خدا را اگر آپ کو غلط لگے تو غلط کو غلط کہیں، اتنی ہمت پیدا کریں اور اپنی اصلاح کریں، کیونکہ بروز قیامت آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ الیاس قادری، نہ کوئی اور، نہ آپ کا ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت تب نصیب ہوگی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کے امتی بن کے ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے خود فیصلہ کریں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ لیٹس سی دا ویڈیو۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت معاد علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے، بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی۔ اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے یہ کرامت سنی، اب دوسری کرامت سنیں۔ آپ کو پہلی کرامت کا جواب دوسری کرامت سے مل جائے گا۔ آپ کرامت کو کرامت سے جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں۔ اب دوسری ویڈیو دیکھیں، پھر آگے باتیں کرتے ہیں۔ لیٹس سی دا ویڈیو۔ حضرت سیدنا عمرو بزاز
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार जुमुअतुल मुबारक के रोज़ में हुजूर गौसे आज़म अलैह रहमतुल्लाह अल अकरम के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नज़र तक उठा कर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना था कि हुजूर गौसे आज़म अलैह रहमतुल्लाह अल अकरम मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए और बस। फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, दस्तबोसियां शुरू हो गई, यहां तक कि मेरे और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी कि मैं तन्हा था तो कुर्ब के मजे थे। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, ए उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, मौलाना इलियास कादरी की ज़बानी खुद सुना, सारा कुछ आप लोगों ने खुद वीडियो देखी। नऊज़ बिल्ला ये कह रहे हैं कि फ़रिश्तों ने आके खबर दी। अगर फ़रिश्तों ने खबर दी तो क्या इसको वही नहीं कहेंगे आप लोग? क्योंकि फ़रिश्ते तो अल्लाह के हुक्म के अलावा तो कुछ करते ही नहीं। नऊज़ बिल्ला, बस इन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया, बाकी ये हर कुछ सब कुछ कर चुके हैं, अपनी हर हद क्रॉस कर चुके हैं। ये कादियानों से भी बदतर हैं मेरी नज़र में। जो ऐसी बातें करता है नऊज़ बिल्ला, ये तो लोगों का ईमान खा रहे हैं और आगे इतनी पब्लिक माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कर रही होती है। अब कोई बरेलवी भाई मुझे ये बताए, जो लोग इन बातों पे यकीन रख के नीचे कमेंट्स में गालियाँ लिख रहे होते हैं, वो मुझे बताएं, क्या आप लोग इसको वही कहेंगे? क्या आप लोग ये कहेंगे कि अभी तक नबूवत का सिलसिला जारी है? क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी तक वही आ रही है? नऊज़ बिल्ला। और फिर आ जाए जी, क्या उसने मेरे मजलिस में हाज़िर हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरे पीछे खाना खाया, मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी या मेरे साथ खाना खाया? और भाई अगर तो उसने तुम्हारे साथ खाना खाया तो बाकी लोगों को कहाँ से पता होगा? सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी है। अगर उसने तुम्हारे साथ खाना खाया तो तुमको पता होना चाहिए, ना कि पब्लिक को नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। दिलों के हाल तो बकौल तुम्हारे, तुम लोगों के शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिलों के हाल जानते हैं। अब ज़रा दोनों करामात को जोड़ें तो रिज़ल्ट निकलेगा ज़ीरो, पता चलेगा सिर्फ़ और सिर्फ ये झूठ है, कहानी है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे नहीं जी ये करामत है। तो भाई मुझे बताओ, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिलों के हाल जानता है तो पहली जो करामत है उसमें क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता था कि उसने मेरे साथ खाना खाया या नहीं खाया? क्यों नहीं जानता था कि मेरी मजलिस में हाज़िर हुआ या नहीं हुआ? और दूसरी करामत में वहीं पे वो दावा कर रहा है कि जी मैं दिलों के हाल जानता हूँ, जिसे चाहे अपनी तरफ कर लूँ, जिसे चाहे फेर दूँ। नऊज़ बिल्ला, ये तो अल्लाह की सिफ़ात है। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े पे डाका डाला इन लोगों ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात नहीं मैं कर रहा, इन लोगों को, इन मौलवियों ने, इन झूठे मौलवियों ने, इन उलमाए सू ने, जिन्होंने भी लिखा है, लिखते आ रहे हैं, जिन्होंने भी लिखा है। अल्लाह पाक फरमाता है, आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, अल्लाह तुम सबको चाहता तो एक ही ग्रोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। ठीक है, ये अल्लाह की सिफ़ात पे पहले इन्होंने डाका डाल लिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिसे चाहे फेर दे, जिसे चाहे अपनी तरफ माइल कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोजज़े पे डाका डाला कि कब्र से अजाब डाल दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे भाई अहादीस पढ़ो कि जो मुर्दे पे अजाब होता है, जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं, वो जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सवाए इंसानों के तमाम मखलूक आवाज़ सुनती है, तो उन पे क्या अजाब होता है? अगर इंसान सुने तो बेहोश हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों ने सुना, बाकी मखलूक ने नहीं। इंसान सारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कह रहे हैं। चलो ये भी शुक्र है कि उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब नहीं किया कि उन्होंने आवाज़ सुनी। अगर उनका कहते तो ये कैसे होता है कि उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, मेरा मानने वाला, फिर पीरी मुरीदी कहाँ से लेके आते? इसीलिए उन्होंने लोगों को सुनवा दी। और भाई क्या आम बंदा भी आवाज़ सुन सकता है कब्र की? आप इतने बड़े आलम हो, आप सुन के दिखाओ कि किसी मुर्दे पे अजाब हो रहा है या क्या हो रहा है। नऊज़ बिल्ला मेरे भाइयों दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है।
इनको जमा तफरीक करें, आपस में मिलाएं, तो एंड पे रिज़ल्ट ज़ीरो ही निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ कहानी है, इसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र की पनाह मांगते थे, कब्र से पनाह मांगते थे कि या अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा। हर नमाज के बाद कब्र से पनाह मांगते थे कि या अल्लाह कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे कि या अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा। और यहाँ पे इनका हर ऐरा गैरा मौलवी, हर वो जो बुज़ुर्ग है, कोई वली है, किसी की तरफ मंसूब है, वो दूसरे की कब्र में जाके हक हिसाब दे रहा है, कभी फरिश्तों को कैद कर लेता है, कभी क्या तो कभी क्या यार इतना रश तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने नहीं बताया कि इतना रश होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना मुश्किल हो जाता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालों का चलना मुश्किल हो जाता था। जगह जाके इतना रश आ गया कि वो इधर होगा वो इधर होगा, दिलों के हाल जानता है। नऊज़ुबिल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ डाके हैं और कुछ भी नहीं है। पीरी मुरीदी और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का एक तरीका और कुछ भी नहीं है। ये लोग तो सच बोलेंगे नहीं क्योंकि इनका बिजनेस है, इनके पैसे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनको फ्री का पैसा आ रहा है, ठीक है, वहाँ कब्रों से, और इनकी पीरी मुरीदी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, चंदे दे रहे हैं, लंगर चल रहा है इनका, और कुछ भी नहीं चाहिए इनको, इनकी दाल रोटी चल रही है। लेकिन जो पब्लिक माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कह रही है, उनको कहना चाहूँगा कि खुदारा हदायत करें, अपने आप को गौर फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि कामयाबी सिर्फ गौर फिक्र करने वालों के लिए है, ठीक है, जो अक्ल से काम लेते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग तो गालियाँ निकालेंगे, हम लोग फिर भी दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला आप सब को हक सच समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी हक सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को हदायत पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।